Pradhan. I welcome you all to my channel. So today we are going to discuss about Venn diagram and operation on set. Mainly there are three types of operation in set, that is union of set, intersection of set and difference of set. So today's first topic is Venn diagram. Venn diagram is a diagram in which universal set is represented by rectangle and its subset are represented by closed curve, usually circles. Okay, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली हूँ in which I had taken universal set as a set of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 10, and I am taking a set A which is a subset of universal set because in the definition it is mentioned its subset are represented by closed curve. Here we have to take subset of universal set. universal set का subset लेंगे हुआ, तो मैं ले रही हूँ 2, 5, 6, 7 एंड 10. तो मुझे इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है उसी, तो देखते हैं कैसे होगा. सो यहाँ पे बोला है डेफिनेशन में, इट इज़ एन डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल. तो मेरा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो होगा उसको मैं रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करूँगी. लेट दिस रेक्टेंगल कंटेन 1, 2, 5, 6, 7, 10, 3, 4, 8, 9. ओके, तो मेरा सेट ए जो होगा उसको मैं सर्किल में रिप्रेजेंट करूँगी विद इन द यूनिवर्सल सेट. तो ये मेरा ये जो रेक्टेंगल है ये हो गया यूनिवर्सल सेट. तो ये सर्किल होगा मेरा सेट ऑफ ए. ओके, ये हो गया सेट ए. This is the usual representation of a set in Venn diagram form. Okay, तो ये हो गया. ये नेमिंग आप बाहर भी कर सकते हो और सर्किल के अंदर भी कर सकते हो. ओके, so our next topic is operation on sets. So there are three types of operation on set. First is union of sets. Second is intersection of sets, and the third one is difference of set. So first let us know about union of set. So what is a union of sets? Let me explain you through an example. I am taking an example where A is a set of 2, 4, 6 and 8, and B is a set of 6, 8, 10, 12, and I have to find A union B, which is numerically denoted as A union B. This U denotes union sign. ओके, तो अगर मेरे पास दो सेट है ए एंड बी और मुझे ए यूनियन बी निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए का जितना भी एलिमेंट है सबको लिख दूंगी. हुआ 2, 4, 6, 8.
देन बी और ए में जो कॉमन एलिमेंट है उनको मैं पॉइंट आउट करूँगी। यहाँ पे देखो ये दोनों एलिमेंट कॉमन है, तो बी में ये कॉमन एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट बचेगा उसको मैं लिख दूँगी। हुआ। फर्स्ट आप ए का जितना भी एलिमेंट है उसको पूरा लिख दोगे, देन यू विल सी द कॉमन एलिमेंट and excluding the common element you will write other element present in the second set which is set B. ओके तो इसका डेफिनेशन होता है let A and B be two sets, then union of set A and set B is the sets of all elements of A and all elements of B, common elements being taken only once। तो इसका डेफिनेशन है let A and B be two set, for example this is A, this is B, the union of the set A and B is the set of all element of A, देखो all element of A and all element of B, common element being taken only one। तो यहाँ पे देखो ये 6 और 8 दोनों में कॉमन था, तो ये जो कॉमन एलिमेंट है इसको आप एक ही बार लिखोगे। वाह, दिस इज नोन एज यूनियन ऑफ सेट। एंड मैथमेटिकली union of set can be represented as A union B is a set of X such that X belongs to A or X belongs to B, or either it will belong to A or it will belongs to B, or it can belongs to both also। यहाँ पे देखो, यहाँ पे A यूनियन B का एलिमेंट जितना भी है, ये बोल रहा है कि A यूनियन B का जितना भी एलिमेंट है आइदर वो सेट A को बिलोंग करेगा नहीं तो सेट B को। तो यहाँ पे देखो 2 बिलोंग्स टू A, 4 बिलोंग्स टू A, 6 and 8 बिलोंग्स टू बोथ सेट, 10 and 12 बिलोंग्स टू सेट B। ओके, इसको हम लिख सकते हैं either X will belong to A or X will belong to B or X will belong to both A and B। ओके, और एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं। Here I am taking set A, E, I, O, U and set B, A, I, U। तो A यूनियन B होगा, फर्स्ट आई विल राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ A, E, I, O, U। देन मैं देखूँगी A और B में कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है A और I, तो B सेट का A और I को छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट है वो मैं लिख दूँगी। सॉरी, यहाँ पे U भी कॉमन जा रहा है, सॉरी। तो
A यूनियन B इज इक्वल्स टू AEIOU। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मेरा एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब सब B, मतलब A इज एन सबसेट ऑफ B। इन दिस केस A इज एन सबसेट ऑफ B। ओके। और एक चीज़, मैं अभी A यूनियन B का वेन डायग्राम बनाऊंगी। वाह। तो यहाँ पे बड़ा सेट जो है, पहले तो हम यूनिवर्सल सेट लेंगे विच इज़ डिनोटेड बाय U, और उसके बाद A और B। लेट दिस बी A एंड दिस सर्कल बी B। तो A यूनियन B होगा मेरा ऑल द एलिमेंट। ओके, ऑल द एलिमेंट, दिस इज नोन एज A union B. So the next property is associative law. Associative law is A union B union C is equals to A union B union C. यहाँ पे A और A union B को ब्रैकेट में रखा है और C को बाहर, और यहाँ पे A को बाहर रख के B union C को ब्रैकेट में रखा गया है। वह ये भी सिमिलर वे में आप, ये जैसे मैंने प्रूव किया है, आप इसे भी प्रूव कर सकते हो। So do it yourself. Let us move on to next property. A union phi is equals to phi, sorry is equals to A। यहाँ पे A union phi मैं ये बता दे रही हूँ। A को लेट में ले रही हूँ 1 2 3 4, और आपको पता होगा phi तो phi डजंट कंटेन एनी एलिमेंट। तो ये दोनों का यूनियन क्या होगा? सेट ए ही होगा, क्योंकि इसमें और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, बिकॉज इट इज़ एम्प्टी। सो ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ओके, दिस इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ, एंड फाई is the identity element of union. Okay, so fourth property is A union A is equals to A। सिंपल सा बात है। लेट A मैं इसे ले रही हूँ, तो A यूनियन A मतलब यही सेट का यूनियन लेंगे तो यही आएगा ना, क्योंकि ये दोनों में सारा एलिमेंट कॉमन है। तो A यूनियन A इज इक्वल्स टू A। इट इज़ नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज यूनिवर्सल सेट और यूनियन A always, universal set union A always gives us universal set। ये इस प्रॉपर्टी का नाम है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके, सो दिस complete our first topic on operation of set, that is union of set. Hope you understand this video. If do, now we will see some properties of operation of union. So the first property is commutative law. Commutative law states that A union B is equals to B union A. As we know, A union B, in the set of A union B, all the element of A and B are present, and the common element are being taken once. And similarly in B union A, all the element of A and B are present, but the common element are taken once. Let me explain you through an example. I am taking A is equals to 1 2 3, B is equals to 2 3 and 4. So here LHS is equals to, left hand side is equals to A union B,
विच इज़ इक्वल्स टू ए यूनियन बी निकालने के लिए मैंने बोला था ए का एलिमेंट जो है वो सब लिख देंगे, तो 1 2 3 लिख दो। उसके बाद बी और ए में जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज़ 2 and 3, इसको छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट बी में बचेगा वो लिख दो। तो हो गया ये हमारा ए यूनियन बी। एंड नाउ लेट अस फाइंड आउट RHS राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल्स टू बी यूनियन ए। एंड ये भी सिमिलरली बी का जितना एलिमेंट है वो लिख दो, 2 3 4। एंड बी और ए में कॉमन क्या है, 2 and 3। सो ए का 2 और 3 को छोड़ देने से क्या बच रहा है, 1। सो यहाँ 1 लिख दो। तो ये इक्वल हुआ कि नहीं, ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं। सो A union B is equals to B union A. Similarly, if so, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.